Dear student, welcome to second lecture on organometallic compounds. In first lecture, we discussed what are organometallic compounds, their examples and nature of the carbon metal bond and their reactivity. Then we started with Grignard reagent, which are organomagnesium compounds, or you can say alkyl or allyl magnesium halides, and as the name suggests, they were discovered by Grignard, Victor Grignard. So in this Grignard reagent, we discussed their preparation, the precaution we have to take in the lab while performing the experiment, structure, and their physical properties. Today, we will start with chemical properties of Grignard reagent. As we know, these Grignard reagent, which is alkyl or aryl magnesium halide, has polar covalent bond, which is 30% ionic in nature. Magnesium is electropositive in nature, so it will be having slightly positive charge, while carbon of alkyl or aryl group will be slightly negative charge. Due to negative charge on carbon, Grignard reagent will act as nucleophile. So we can say Grignard reagent undergo nucleophilic reactions, and they are of two types. First is nucleophilic substitution reaction and second is nucleophilic addition reaction. We will discuss nucleophilic substitution reactions first. So in this, the attacking reagent will be a nucleophile provided by Grignard reagent, which is alkyl or aryl group present in it. It will attack some substrate and displace one of the atom from it to form substituted product. Generally, the Grignard reagent undergo substitution reaction with compounds containing active H or halogen atom. So here you can see the mechanism. RMGX reacts with substrate AB. R being having slightly negative charge will act as nucleophile and attack at A and displaces B, which will form Ra, a substituted product, and magnesium magnesium halide combines with B. A can be H or halogen atom, while B can be groups like OH, ethoxy group हो गया, primary amino group हो गया, या acetate group वगैरह हो सकते हैं. तो सबसे पहले रिएक्शन जो हम देखेंगे दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एल्केन. एल्केन की फॉर्मेशन में जो अल्काइल ग्रुप है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर, वो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे ये वाटर है, अल्कोहल वगैरह है, इनमें से H के साथ कंबाइन करके एल्केन की फॉर्मेशन करेगा. तो पहले हम देखते हैं वाटर के साथ रिएक्शन. यहाँ क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड हमने लिया है which attacks water and displaces OH. There is formation of methane, CH3 and H will form methane, and basic magnesium iodide is formed. In second example, ethyl magnesium bromide reacts with ethyl alcohol. Here ethyl will take up H from ethyl alcohol, active hydrogen है ये, तो ethane will be formed along with ethoxy magnesium bromide. Then methyl magnesium iodide reacts with acetic acid to form methane and magnesium acetate bromide. Now in next example, methyl magnesium iodide reacts with primary amine. We have taken example of ethylamine to form ethane and amino ethyl magnesium iodide. In case of next methyl magnesium iodide, when it reacts with propane, here hydrogen, it is slightly acidic in nature due to sp hybridization
of the triply bonded carbon. It is having more s character and is more electronegative. So there is possibility of removal of hydrogen from this compound, alkyne. So this H, active H, will combine with methyl group to form methane, and formation of this propenyl magnesium iodide will take place. So in these reactions, when we have taken alkyl group CH3 in Grignard reagent, and when it reacts with active hydrogen containing compound, there is evolution of methane. This reaction is used for quantitative estimation of OH, NH2, SH groups, etc. in organic compounds. This is called Jerry-Wittnoff's method. Now, other type of reaction with compounds containing more reactive halogens. तो alkyl और aryl group जो Grignard reagent में होते हैं, they are weak nucleophiles. तो ये उतनी आसानी से या उतनी रिएक्टिव नहीं है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसा कि अल्काइल हैलाइड्स में होता है. लेकिन विद कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर रिएक्टिव हैलोजन एटम्स, ऐसे कंपाउंड्स के साथ ये रिएक्ट करके रिएक्शन दे सकते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, दैट इज रिएक्शन विद रिएक्टिव अनसैचुरेटेड हैलाइड्स. तो हैलाइड्स जो है, हैलोजन एटम जो है वो डबली बॉन्डेड ग्रुप के साथ अटैच्ड होगा. हियर वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ एलाइल आयोडाइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड. तो मिथाइल जो है न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा. ये इस CH2 पे अटैक करके I को डिस्प्लेस कर देगा और देयर इज यहाँ पे खुद अटैच हो जाएगा I की जगह पे. तो यू विल हैव butyl प्लस मैग्नीशियम आयोडाइड. So in this way you are getting alkene from Grignard reagent when it reacts with some reactive unsaturated halide. Next is formation of alkene. Alkane भी हम इस तरह से बना सकते हैं जब टर्शरी alkyl halide के साथ रिएक्शन होगा ग्रीनार्ड रिएजेंट का. हियर वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड. जब ये मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नियोपेंटेन और इट्स IUPAC नेम इज 2,2-dimethyl propane and chloromagnesium iodide will be formed. In next example we have taken Grignard reagent इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. इसका रिएक्शन कराया गया है बेंजाइल क्लोराइड के साथ. तो क्या होगा, C2H5 जो है यहाँ CH2 पे अटैक करेगा और Cl को डिस्प्लेस कर देगा. तो इस तरह से हमारे पास जो है क्लोरोमैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ मिलेगा हमें 1-phenyl प्रोपेन. तो यहाँ पे लंबी चेन जो है 3 कार्बन एटम की, इसीलिए इसको प्रोपेन कहा है. और फिनाइल ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको लीस्ट नंबर देना है, इसलिए इस कार्बन एटम को हमने 1 नंबर दिया है, 2 and 3. So it becomes 1-phenyl propane. So in this way we can have alkane with the help of Grignard reagent. Next is formation of alkyne. We can form higher alkynes with reaction of Grignard reagent with terminal alkynes. तो टर्मिनल एल्काइंस कौन से होंगे, जिनमें एंड कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन एटम के बीच में होगा. तो जब ये जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है प्रोपाइन का, जब ये मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जो है ये CH3 ने अटैक करना है यहाँ कार्बन के ऊपर और H को डिस्प्लेस कर देना है. तो आपके पास जो कंपाउंड आएगा ये एडिशन प्रोडक्ट आएगा. एक तो ये CH3H मिलके मीथेन बनाएगा प्लस प्रोपिनिल मैग्नीशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा. तो ये प्रोपेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड फिर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा एंड हियर यू कैन सी फॉर्मेशन ऑफ Pen2 ion has taken place.
जितना हायर अल्काइन आपको चाहिए, ये अल्काइल ग्रुप जो है अल्काइल हाइड्राइड में, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम आप इंक्रीज कर सकते हैं. सो इन दिस वे, फ्रॉम a alkyne of 3 carbon atom propyne, you have prepared alkyne with 5 carbon atoms. Higher alkyne is prepared. In the similar way, formation of higher ethers will take place when reaction with lower halogenated ether के साथ Grignard reagent का reaction होगा. Here we have taken example of ether. डाइमिथाइल ईथर में एक HCl से रिप्लेस हो गया है. क्लोरोमिथाइल ईथर हमने लिया है और इसको इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से रिएक्ट किया है. तो ये जो इथाइल ग्रुप है ये यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन के ऊपर और Cl को डिस्प्लेस कर देगा. इन दिस वे यू विल बी हैविंग मिथाइल प्रोपाइल ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड. जब एल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड या ब्रोमाइड रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ, तो यू गेट एल्काइल आयोडाइड. इस रिएक्शन में क्या होता है, पहले आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं. यू टेक RX प्लस Mg टू फॉर्म RMgX. तो जब R हम इथाइल ग्रुप लेते हैं और X Cl है और Mg के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. इसको हम आयोडीन के साथ ट्रीट करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ इथाइल आयोडाइड प्लस MgClI विल टेक प्लेस. इसी तरह से अगर R इथाइल है और X Br है और Mg के साथ ट्रीट करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है which when reacted with iodine gives us ethyl iodide. इसका मतलब क्या है कि हम इस रिएक्शन में जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड, इसको हम एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट कर देते हैं बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन. इसी तरह से हम बना सकते हैं अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. हो जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं, इनऑर्गेनिक हैलाइड्स लाइक जिंक क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड, tin chloride and lead chloride. Here we have example of tetraethyl lead. How it can be prepared? We take ethyl magnesium iodide and treat it with lead chloride when tetraethyl lead will be formed. Similarly, to get diethyl cadmium, we treat ethyl magnesium iodide with cadmium chloride. तो यहाँ पे डाइथाइल कैडमियम होगा. जब इथाइल ग्रुप हमने कैडमियम के साथ अटैच करना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्काइल ग्रुप जो है वो इथाइल ग्रुप होगा. इसी तरह टिन क्लोराइड का जब हम रिएक्शन करते हैं मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ, तो ये देखिए टेट्रा इथाइल टिन हमें मिलता है. तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स हैं, उनसे हमने ऑर्गेनो लेड, ऑर्गेनो कैडमियम, ऑर्गेनो टिन कंपाउंड्स जो अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनका प्रिपरेशन किया है. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड. जब इथाइल ऑर्थो फॉर्मेट के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होता है तो वी गेट एल्डिहाइड. हियर वी हैव टेकन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड दिस इज इथाइल ऑर्थो फॉर्मेट. तो जो CH3 है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा कार्बन ऑफ इथाइल फॉर्मेट and displaces one of the OC2H5 group. There is the formation of this product and ethoxy magnesium bromide. This product, substituted product, when this product on acid hydrolysis form dihydric alcohol in which two OH groups are on the same carbon atom. So it is unstable compound. As two OH groups cannot be present on one carbon atom, there will be loss of water and formation of acetaldehyde. Next reaction is formation of primary amines. That is reaction of Grignard reagent with chloramine. You will take
chloramine, when it reacts with ethyl magnesium chloride we have taken as Grignard reagent, there is formation of ethyl amine and magnesium chloride. Ethylamine is primary amine, so formation of primary amine in this reaction has taken place. These are examples of nucleophilic substitution reactions. Now, nucleophilic addition reactions. Grignard reagent undergo nucleophilic addition reaction with compounds containing multiple bonds. You can have multiple bonds in these functional groups like carbonyl group, C double bond S, C triple bond N, etc. First addition compound will be formed, and then this adduct or addition compound on acid hydrolysis give a large number of products. Here we can see the mechanism. This is suppose we have taken carbonyl compound, so CO group is present. This is polar covalent bond, CO bond. Oxygen is more electronegative than carbon. It will attract shared electron pair of the CO bond towards itself, so it becomes slightly negative, while carbon is slightly positive, or you can say electron deficient. In Grignard reagent, R group is nucleophilic in nature. In alkyl group, this R group, carbon will be slightly negative, so it will attack electron deficient carbon atom of carbonyl group, and there will be then R will get attached to carbon atom, and displacement of shared electron pair on oxygen. Oxygen will have negative charge, MgX will come join here, and formation of addition product will take place. On acid hydrolysis, there is formation of this product alcohol and basic magnesium halide. So in all reaction with all these multiple containing functional groups, same mechanism will be followed. Here we are taking first formation of alcohol, that is reaction with carbonyl compound. तो कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें CO ग्रुप प्रेजेंट होगा, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन हो गए, तो एल्डिहाइड और कीटोन का जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होता है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों तरह के अल्कोहल बन सकते हैं। एल्डिहाइड के साथ प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे, जबकि कीटोन जो है टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होगा फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड में 2 H हैं और कार्बोनिल कार्बन के साथ ये अटैच्ड है। तो सपोज हम लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, द रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जो अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बोनिल कार्बन को अटैक करेगा, ऑक्सीजन की तरफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस हो जाएगा, CH3C पे अटैच हो जाएगा और MgBr O के साथ अटैच होके ये एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये एडिशन प्रोडक्ट जब एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ H here, CH3 CH2 OH, ethyl alcohol which is primary alcohol is formed. प्राइमरी इसलिए कहलाएगा क्योंकि वो कार्बन जिसपे OH ग्रुप अटैच्ड है उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हो गया। एंड देयर इज आल्सो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सेकेंडरी अल्कोहल जो है, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी आप एल्डिहाइड लेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जैसे CH3CH जो एस्टल्डिहाइड ले सकते हैं आप, CH3CH2CHO प्रोपियोनो एल्डिहाइड ले सकते हैं या प्रोपेनल इसको कहा जाता है, तो सेकेंडरी अल्कोहल देंगे। तो सारे एल्डिहाइड एक्सेप्ट formaldehyde gives secondary alcohol with Grignard reagent. Here we take acetaldehyde and react it with methyl magnesium bromide.
तो जो मिथाइल ग्रुप है, अगेन इट विल अटैक carbon of carbonyl group and displace its shared electron pair towards oxygen atom. तो इसमें एस्टरडिहाइड में एक CH3 और H पहले अटैच थे, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है CH3 अल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैच हो गया है। तो CH इस कार्बन के ऊपर दो अल्काइल ग्रुप अब प्रेजेंट हो गए हैं। ओपन नेगेटिव चार्ज था, उसके साथ जुड़ गया है MgBr। तो ये एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है विच ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स, यहाँ पे H आ जाएगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है सेकेंडरी अल्कोहल होता है, क्योंकि कार्बन जिसपे OH अटैच्ड है उसके साथ दो अल्काइल ग्रुप आप देख सकते हैं अटैच्ड है। इस तरह से सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। तो जब कीटोन्स के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होगा तो टर्शरी अल्कोहल बनेंगे। इसका रीजन क्या है कि ये जो कीटोन्स हैं इनमें दो अल्काइल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन के साथ ऑलरेडी अटैच्ड होते हैं, और फिर तीसरा ग्रुप आ जाता है जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा CH3 ग्रुप कार्बोनिल कार्बन पे, ऑक्सीजन की तरफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस होगा, it will have negative charge and MgBr get attached with oxygen। तो CH3 जो है कार्बन पे अटैच होगा CO ग्रुप की और ऑक्सीजन के साथ MgBr। तो इस तरह से हमें ये एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा which on acid hydrolysis form tertiary alcohol, it is tertiary butyl alcohol here, and hydroxy magnesium bromide। तो tertiary butyl alcohol जब कार्बन जिस कार्बन के साथ OH अटैच्ड होता है उस पे तीन अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ये टर्शरी कार्बन एटम है और उस पे OH है, तो हम इसको टर्शरी अल्कोहल कहेंगे। दूसरा है प्राइमरी अल्कोहल। इसको हम एक और रिएक्शन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद इथाइलिन ऑक्साइड। तो क्या होगा, ये जो अल्काइल ग्रुप है मिथाइल ग्रुप हमने लिया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, it will attack here in ethylene CH2, एक CH2 पे अटैक करेगा इथाइलिन ऑक्साइड भी, और ये जो है बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीजन पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और MgBr ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमें एडिशनल प्रोडक्ट मिलेगा जो एसिड हाइड्रोलिसिस करने पे हमें देगा प्रोपाइल अल्कोहल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल जब रिएक्शन होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एस्टर के साथ। फॉर्मिक एसिड का एस्टर होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, और अगर दूसरे एसिड्स लेंगे एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड वगैरह, तो टर्शियरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। तो पहले हम सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन लेते हैं। तो यहाँ हमने एग्जांपल ली है इथाइल फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड का इथाइल एस्टर है, इथाइल फॉर्मेट हम इसको कहेंगे, या इथाइल मिथेनोएट है। इसका रिएक्शन हमने किया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सॉल्वेंट। तो अगेन CH3 अटैक करेगा ये CO के C पे और O की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा वन इलेक्ट्रॉन पेयर, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो OMgBr जो है ये MgBr ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। फिर ये ऑक्सीजन मैग्नीशियम बॉन्ड का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कार्बन और ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बनाएगा और एक OC2H5 जो है डिस्प्लेस हो जाएगा। इस तरह से CH3CH डबल बॉन्ड एस्टल्डिहाइड हमें मिलेगा, प्लस इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। ये जो एस्टल्डिहाइड है, अगर आपने जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है एक्सेस में दिया है तो फिर से रिएक्शन ये देगा, एस्टल्डिहाइड जो फॉर्म हुआ है उसके साथ एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, and there will be formation of secondary alcohol isopropyl alcohol here। तो इस तरह से
जब हम 1 मोल लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का 1 मोल, तो हमें एल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड इस एग्जाम्पल में मिल रहा है। अगर 2 मोल लेंगे तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल फॉर्मेशन, इसके लिए हम दूसरे फॉर्मिक एसिड से जो अदर एसिड्स हैं, जैसे हमने या इथाइल एस्टर ऑफ एस्टिक एसिड या इथाइल एसीटेट, उनके साथ रिएक्शन करने पे होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन होगा, सो इथाइल एसीटेट व्हेन रिएक्ट्स विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट गिव एडिशन प्रोडक्ट। तो एडिशन प्रोडक्ट जो है हाइड्रोलिसिस करने पे हमें देता है एसीटोन। यहाँ देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O जो है, एक CH3 पहले प्रेजेंट था और एक जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने प्रोवाइड किया है, तो 2 CO पे 2 CH3 ग्रुप हो जाएंगे, तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अगर 1 मोल लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में होगा तो फर्दर रिएक्शन होगा, कीटोन भी रिएक्ट कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अगेन एडिशन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म which on acid hydrolysis will give tertiary alcohol। तो कीटोन में 2 अल्काइल ग्रुप ऑलरेडी थे, एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है मिथाइल ग्रुप जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है, इसने कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया, तो यहाँ पे ये अटैच हो गया, और एसिड हाइड्रोलिसिस पे जो OMGBr बनता है ये OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से इस रिएक्शन में हमें टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल यानी कि टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसी तरह से रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड हम कर सकते हैं। तो एसिड क्लोराइड के साथ हमें टर्शरी अल्कोहल मिलता है। We have taken example of acetyl chloride when it react with methyl magnesium bromide, तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा जो हाइड्रोलिसिस होने पे हमें एसीटोन देगा। तो अगर तो रेशो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एसिड क्लोराइड की 1:1 रहेगी तो एसीटोन मिलेगा, लेकिन अगर हम एक्सेस में लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तो जो एसीटोन बना है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फिर से रिएक्ट करके एडिशन प्रोडक्ट देगा, विच ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस फॉर्म टर्शरी अल्कोहल। तो इसके साथ ही हम फिनिश करते हैं आज का लेक्चर। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी रिमेनिंग है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उनको डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।